students, I am Monika Gupta from MA International School, Nayagaon, Kota. We are going to start your chapter number 12 in science, which is forms of water. So let's start. Chapter 12, forms of water. In this chapter, we will learn different forms of water, explain how water changes from one form to another. Water की कितनी forms होती है, water एक form से another form में कैसे change होता है, and we describe the water cycle. Water cycle क्या होता है? Now forms of water, we all know water exists in more than one form. ऐसा नहीं है कि water सिर्फ liquid form में ही होता है. Water एक form से ज़्यादा form में exist करता है, एक form से ज़्यादा form में होता है. At room temperature, water is a liquid. Room temperature मतलब normally जब हमारे पास पानी तो कैसा होता है, वो liquid form में होता है. Water changes into ice when it is cooled at a very low temperature. देखो वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है. कब होता है, जब आप वाटर को फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में, आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बहुत लो होता है, 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड उसका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है. तो वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट इज कूल्ड, जब वो बहुत ठंडा होगा, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, जब उसको बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा. The changes of liquid form of a substance into solid form is called freezing. Now, liquid form का change होना solid form में. The change of a liquid form of a substance into solid form. किसी भी substance का, चाहे water हो या कोई भी substance होता है, किसी भी substance का liquid form से solid form में change हो जाना. Water कैसे था? Water form से ice form में change हो जाना. Like liquid form से solid form में change हो जाना होता है freezing. Water freezes into ice. Water किस में change हो जाता है? Ice में. So water freezes into ice. Glaciers are big mountains of ice. Glaciers क्या होता है? जब गर्मी अभी होती है, हमारा environment, atmosphere इतना disturb हो चुका है, glaciers बहुत ज़्यादा melt हो रहे हैं. Glaciers are big mountains of ice. बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं. क्या होते हैं? Are big mountains of ice. Ice melts into water. Ice किस में melt होता है? Water में melt होता है. The change of solid form of a substance into liquid form is called melting. Now जब liquid form change होता है solid में, तो वो क्या होता है? Freezing. But जब solid change होता है liquid में, the change of a solid form of a substance into liquid form, किसी solid substance का liquid form में convert होना, like ice से water, snow से water का convert होना. Snow क्या हुई? Solid हुई, water क्या हुआ? Liquid हुआ. जब snow से water में change हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Melting. उस change को हमने क्या बोला? Melting. We see steam coming out of the kettle when water is heated. जब भी हम कैटल में वाटर हमने या तो पानी गर्म डाला या कैटल में वाटर को बॉईल किया, पानी को गर्म किया, तो क्या दिखता है? हमें स्टीम दिखती है. एंड स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर. क्या होता है स्टीम? वाटर वेपर. व्हेन यू बॉयल द वाटर, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर की स्टीम, जो स्टीम होती है उसे हम कहते हैं वाटर वेपर. वाटर इवेपोरेट्स इनटू वेपर. किस में इवेपोरेट हो जाता है वाटर? जब बॉयल कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर इवेपोरेट्स हो जाता है वेपर में. The change of liquid form of a substance into gaseous form is called vaporization. एकदम वेपर धुआं होता है तो वो क्या होता है? Vaporization क्या होता है? The change of a liquid form of a substance. Now किसी substance की liquid form का gaseous form में change होना, किसी substance का liquid form का gaseous form में change होना होता है vaporization. Melting क्या था? किसी solid form का liquid form में change होना melting. किसी लिक्विड फॉर्म का सॉलिड फॉर्म में चेंज होना फ्रीजिंग. नाउ चेंज किसी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चेंज होना होता है वेपराइजेशन. व्हेन वाटर वेपर इज कूल, व्हेन वी बॉयल द वाटर, जब हमने वाटर को बॉयल किया, जब हमने वाटर को बॉयल किया तो क्या हुआ? स्टीम देखी हमें. वो क्या था? बेसिकली वाटर वेपर. बट व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, बट जब पानी ठंडा हुआ, वाटर वेपर कूल्ड हुई, इट अगेन चेंजेस इनटू वाटर. क्या होता है? वो अगेन किस में चेंज हो जाता है? वाटर में चेंज हो जाता है. द चेंज ऑफ द गैसेस फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. What is condensation? The change of the gaseous form of a substance into liquid form. जब लिक्विड फॉर्म का चेंज हुआ था गैसेस में, उस प्रोसीजर को हमने बोला था वेपराइजेशन. नाउ गैसेस, किसी भी सब्सटेंस का गैसेस फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना होता है कंडेंसेशन. वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ वाटर में, जो वेपर थी वो किस में कन्वर्ट हुई? वाटर में. इट मीन्स गैसेस फॉर्म किस में चेंज हुई? लिक्विड फॉर्म में. तो गैसेस फॉर्म किसी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना होता है कंडेंसेशन.
स्टीम और वाटर वेपर ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद स्टीम या वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर, चेंजेस इनटू वाटर। दिस शोज दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। ये क्या शो करता है? वाटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म, आइस विच इज इन सॉलिड फॉर्म एंड वाटर वेपर विच इज इन गैसेस फॉर्म। वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, वाटर क्या होती है? एक लिक्विड फॉर्म होती है, आइस एक सॉलिड फॉर्म होती है एंड वाटर वेपर एक गैसेस फॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, वाटर आइस में फ्रीजेस हुआ, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? फ्रीजिंग। नाउ आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस किस में मेल्ट हो गई? वाटर में। जब सॉलिड का मेल्टिंग, सॉलिड का चेंज हो गया लिक्विड में, वो प्रोसेसिंग क्या हुई? मेल्टिंग। नाउ वेपर कंडेंस इन वाटर, वेपर कंडेंस किस में हो गया था? वाटर में। तो प्रोसीजर क्या हुआ? कंडेंसेशन, किसी गैसेस फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना। एंड वाटर इवेपोरेट्स इनटू स्टीम, स्टीम में इवेपोरेट हुआ, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? वेपराइजेशन। वाटर साइकिल, नाउ वी फाइंड वाटर एवरीवेयर। देखो वाटर हमें हर जगह मिलता है, लाइक लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस, वी फाइंड वाटर एवरीवेयर। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, हमें पानी कहाँ से मिलता है? रेन से, बारिश से। बट वेयर डज रेन कम फ्रॉम, बट बारिश बेसिकली होती कहाँ से? रेन कैसे होती है वो हम समझते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज गेट्स हीटेड अप बाय द सन। रिवर्स, लेक्स और सीज, देखो सूरज होता है, सन की हीट बहुत ज़्यादा होती है, सो वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज गेट्स हीटेड अप बाय द सन। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस। अब वाटर किस में चेंज हो जाता है? रिवर्स का वाटर किस में चेंज हुआ? वाटर वेपर में। एज वाटर वेपर राइज अप, जैसे जैसे वाटर वेपर और होता है, दे कूल एंड चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट। क्या करता है वो? वाटर ड्रॉपलेट में कलेक्ट कर लेता है। वाटर वेपर ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसने अपने आप को चेंज किया इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। These droplets collectively form clouds. Clouds क्या होते हैं? बेसिकली ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। आसमान में हमें स्काई में क्लाउड्स दिखते हैं, आसमान में बादल दिखते हैं, बादल क्या होते हैं? These all are the tiny droplets of water. वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है जो कलेक्टिवली एक साथ होती है और क्या फॉर्म करती है? क्लाउड्स, बादल फॉर्म करती है। As more and more drops collect, the clouds become heavy and big. जितने ज़्यादा ड्रॉप्स कलेक्ट होते जाते हैं, क्लाउड्स कैसा होता जाता है? हैवी एंड big. The water in the clouds then falls back to the earth in the form of rain. सबसे पहले क्या हुआ था? सन हीटेड अप हुआ था, तो वाटर क्या किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। वाटर वेपर जब कूल डाउन हुए तो उन्होंने टाइनी ड्रॉप्स फॉर्म करी और टाइनी ड्रॉप्स कलेक्टिवली क्या फॉर्म किया उन्होंने? कलेक्ट होने के बाद क्या फॉर्म हुआ? क्लाउड्स। और जब बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं तो क्लाउड कैसा लगता है हमें? बिग एंड हैवी। Now water in the clouds, clouds का water then falls back, again वो पानी कैसा आता है? falls back, वापस नीचे आता है to the earth in the form of rain. वो रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में क्लाउड से पानी वापस आता है। This water flows back to the rivers, lakes and seas. Once again the water gets heated and the cycle starts all over again. Again पानी, वाटर हीटेड होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, देन टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, उसके बाद जब कूल डाउन हो जाता है तो अगेन फॉल्स बैक करता है। तो ये क्या होता है? एक साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यूस साइकिल होती है। इट साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ही होता है। इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्या होता है ये? वाटर साइकिल। लुक देखो क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर, सन की हीट से क्या हुआ? इवेपोरेशन, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर वेपर में। देन क्या होता है? छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करे, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करे, वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड देन द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, वाटर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। जब पानी होता है, बारिश, बादल से पानी आता है, ज़मीन पे आता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली जो वाटर रिवर से इवेपोरेट हुआ था वही वाटर क्या आ जाता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वापस रिवर्स में या लेक्स में वापस आ जाता है। यही होती है हमारी वाटर साइकिल जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इन कोल्डर रीजन्स समटाइम्स रेन फॉल्स थ्रू वेरी कोल्ड एयर। कोल्डर रीजन्स में क्या होता है? समटाइम्स रेन फॉल्स थ्रू वेरी कोल्ड एयर। ड्यू टू द कोल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। बहुत ठंडी हवा भी चलती है साथ में, तो क्या होता है? ठंड की वजह से रेनफॉल किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस में। एंड देन फॉल्स डाउन एट स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। और उसके बाद वो कैसी गिरती है? जब वो आइस में कन्वर्ट हो गई तो इट फॉल्स डाउन इन अ फॉर्म ऑफ एज स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। आइस की छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में फॉल डाउन करती है। एंड दीज आर कॉल्ड हेल स्टोन्स। ये क्या होती है? हेल स्टोन्स। Sometimes water vapor changes into soft ice in a very cold air to form snowflakes.
क्या होता है, कभी कभी वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है, सॉफ्ट आइस में, इनटू अ सॉफ्ट आइस इन अ वेरी कोल्ड एयर। ठंडी हवाओं में वाटर वेपर किस में चेंज हो गया, इनटू अ सॉफ्ट आइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नोफ्लैक्स। क्या फॉर्म करते हैं, स्नोफ्लैक्स। These snowflakes fall as snow, स्नो की फॉर्म में गिरते हैं, वो कहते हैं हेलस्टोन। नाउ दीज स्नोफ्लेक्स फॉल एज स्नो, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स इन नेचर। सो नेचर में वाटर किस फॉर्म में होता है, इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू।